everyone, welcome to a new video of Unacademy CA Squad. This is CA Surabhi Gandhi. I'm a chartered accountant by qualification. With that, I'm also a yoga trainer, an artist and an anchor. तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है because आज के इस वीडियो में I have two very interesting chartered accountants. One who is at the peak of his career and one who is just getting started into the corporate world. But before I begin, I am sure that you are going to have great insights from this video. So make sure that you watch this video till the end. With that, let me introduce you with today's guest. I have CA Ram Mundra sir, and who is a successful chartered accountant and a law graduate. He has an experience of over 3 decades in the corporate finance sector and is the CFO of Mahindra Holidays. Welcome, sir. I also have Yatharth Bafna with me, who is a chartered accountant. With that, he has also scored an All India rank. So, शुरू से शुरुआत करते हैं. You both are chartered accountants. When was it that you decided to get into this course? Okay, so Surbhi, this is more than 3 decades, right? Wow. So when I decided to start this course, it was a very different world. Okay. And is compared to what we see today. That point of time, you know, we did not have much options, and we did not have money. You know, other than option, money was also required. So what one would think of, सबसे कम पैसे में आराम से क्या हो सकता है? हमारे दिमाग में, मेरे पेरेंट्स के दिमाग में एक ही चीज होती थी कि सीए करो. So what is investment required in CA at that point of time is only study and sincerity. Okay. So there was no option available much, and I was from very small village. So there was the only option. What I could do is dedication. So sir, जैसे आपने बताया कि CA उस टाइम पे इतना पॉपुलर नहीं था, but आजकल I see कि a lot of students want to get into this profession. So how was it जब पहले के ज़माने में जब लोगों को decide करना था, how difficult was that? It was very difficult and complex. Okay. It's equally difficult now, I believe, where you can you know tell us more, and or Yatharth can tell us. But that point of time, people wanted to do CA if they were dedicated and they were ready to do this kind of efforts. But it was complex and very difficult because that point of time their results, the percentage of results was like 2%, 3%, at the most 4%, and therefore this was very reputed course, And secondly, in our those days, in our childhood days or those days, we used to see some CS and they were very successful in financially, in terms of social reputation and all that. So that was the good enough motivation to go for CA. So in which year did you pursue CA? What year was that? So Yatharth, it was 1988, where from my village I was like the only one to become the first CA from my community. Wow, long back, first CA. Interesting. So Yatharth, what do you think? आपका क्या बचपन से सपना था? Were you very clear कि बड़ा होके CA ही बनना है? So I think the current scenario, I think has been drastically changed. Nowadays, once people choose in commerce in 11th, 12th, and then they have to pursue their bachelors. I think they have multiple options, diverse. Like they have BBA, they have BMS, they have multiple different types of courses which they can pursue. So chartered accountant, and because chartered accountancy is still being as tough as it was back then, I think people nowadays look for an easier option maybe. But again, talking about how I pursued chartered accountancy, I think while thinking as to what to do post my 12th. Like sir said, being from a Marwadi family, chartered accountancy being the most cheapest course possible. And I think in terms of returns, once you become or once you qualify as a chartered accountant, vis-a-vis once you qualify, once you complete your bachelor's degree, I think the return in terms of career opportunities or the doors which open for you is much more lucrative for a chartered accountant. So that is what made me choose chartered accountancy as a course. I feel that different things motivate us at different times. For you, what was that motivating factor? I would want to know it from both of you. In those days, in those years, more than 3 decades, those all facilities and the options for studying were not there. Classes were not there. For example, I come from Hindi medium in school and all that. तो पहले तो English में होता था. It was not in Hindi. बाद में हिंदी में स्टार्ट हुआ. So the first challenge was कि English में कैसे करेंगे. Second challenge was ये था कि इतना मेहनत करना पड़ेगा. उसके बाद ये था कि classes नहीं है. Right? There's nobody to guide you. You don't have notes from very reputed classes institute or something. So only वही लोग आते थे CA करने जो मेहनत करने के लिए रेडी होते थे.
राइट, बिकॉज इट वॉज कॉम्प्लेक्स डिफिकल्ट, एंड उसका जो सामने रिटर्न मिलता था, जैसे यथार्थ ने बोला, इट वॉज एनॉर्मस रिटर्न. The ROI you cannot calculate. And secondly, nowadays what happens, you have so many classes, so many notes, time में ये tricks, we did not think about all the tricks. More than study and passing the exam, we used to think about knowledge and how we can make our family financially sound. एंड यथार्थ आपको क्या चीज़ ने मोटिवेट किया सीए बनने के लिए? To be honest, I think money was the motivation, to be very frank, because like I said, highest return in CA and the input required in terms of investment is the lowest. So I think that is what attracted me, and also I think the CA as a curriculum, because it touch upon a lot of different subjects, right? So the kind of knowledge and the base which we develop first. Second, articleship being a part of CA curriculum, at a very young age you get a corporate exposure. You start your articleship by the time when you're 17 or 18, right? Okay. So I think a very early exposure to these things and the enormous knowledge which you get attracted me towards choosing CA. तो सर आपने बताया कि ना उस टाइम पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती थी और बहुत चैलेंजेस होते थे. व्हाट डू यू थिंक वाज द बिगेस्ट चैलेंज एट दैट टाइम फॉर समवन हु वांटेड टू गेट इनटू सीए? Everything was challenge, let me tell you. Everything was challenge except the investment. Okay. Because the money, you did not, even you are in village and if you study, of course you have to do articleship and all that. So study was challenge, right? Understanding the subject was challenge. There is nobody to guide you. Even your parents would not know, what is the CA is all about. तो एक चीज़ विच आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि उस टाइम पे आई डोंट नो कि फीमेल्स कितना ऑप्ट करती थी सीए एज अ करियर को. So females, though I don't remember any female, opting for that in those times. Okay. But now I see, say I come from say Bhilwara in Rajasthan, right? Every family of our community, Maheshwari community, they have, forget male. Every female, the जो भी girl child होती है, everybody is doing CA. In fact, I recently read somewhere that approximately 38 to 40% of chartered accountants are females. I think. Is that the reason for you to do CA? Not really. That could be one of them, but Could be one of them. I can't take it on. अच्छा. So both of you mentioned कि CA as a profession बहुत lucrative है, ROI बहुत high है. So यथार्थ, I would like to know it from you कि what an average CA or a ranker can expect. What is a CTC? So nowadays, a CA, because what I understand back then, there were limited types of jobs available. But nowadays, I think CAs not only, end up in corporate jobs, but they also get opportunities like investment banking, private equity, management consulting, right? So these are the opportunities which have opened for CAs as well, which was typically for MBAs back then. But in terms of money, like how much, usually CAs earn, I think a fresher, starts anywhere between 10 to 12 lakhs per annum. And if I talk about rankers, so rankers, typically start between 20 to 35 lakhs per annum. Oh, wow. तो सर आपके ज़माने में भी ऐसे ही होता था क्या कि more than age someone was earning? Was it similar or what was the CTC? So let me give you my example. हाँ. When I became CA, and I was very happy with the kind of money was offered to me. It was something about 1525 rupees per month. 1525 rupees per month. per month. Per month. Oh my God. So it's about 19,000 per annum CTC. Oh, okay. And that was reasonable money, not very good, but it was a reasonable money. मतलब in fact आज के एक कैफे का वो लोग स्पॉन्सर कर देते थे. Absolutely. Okay, so 19,000 back then would value what, around 5 to 7 lakhs today? Yeah, or maybe, yeah. somewhat? If you take 7% as a inflation, right? So that was sufficient money, not very lucrative. Today we have so many gadgets, right? हाँ. कि आपने कुछ काम आपने SAP कर दिया, SAP लगा दिया, Oracle लगा दिया, ERP लगा दिया, तो आपका बैलेंस शीट वगैरह बन जाता है. You don't have to worry about entries, this, that, and all that. Those point of time there was no computer, right? So there a lot of मेहनत was required, even do the basic accounting. So with this kind of money, you have to do a lot of मेहनत, right? Oh. Forget anything else. पहले तो आप ट्रायल बैलेंस स्टडी करो. आज के बच्चों के शायद ट्रायल बैलेंस आपको मालूम नहीं होगा. P&L से सीधे आप बैलेंस शीट में आते हो. सर आपने बताया कि उस टाइम इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, इतने गैजेट्स नहीं थे. सो आई वांट टू नो इट फ्रॉम यू दैट व्हाट डू यू थिंक हाउ हैज द करिकुलम चेंज्ड ओवर द इयर्स सीए का? So basically we used to depend on your मेहनत only, कि मेहनत करनी है. और so you used to have study material from institute, very nice study materials. You also used to use the various books. The various books were available,
and then suggested answers. TAs were known as if they are only accountants, right? कि उनको बैलेंस शीट बनानी है, अकाउंट्स बनाने हैं. They were true accountants, so they were not good at presentations, they were not good at articulations, and they were like in earlier times, you know, CA के पहले के टाइम में like मुनीम जी होते थे, हेड मुनीम. अभी क्या चल रहा है, so that then we can take our discussion from here. So I think आज के सिनेरियो में जो रिसेंटली कोर्सेज आए हैं उसमें पहले CA CPT होता है एंट्रेंस, फिर CA IPCC और CA फाइनल्स, जिसको अभी न्यू कोर्स में करा है CA फाउंडेशन हो जाता है, फिर CA इंटरमीडिएट एंड देन CA फाइनल्स. सो तो उस टाइम 1980s में क्या होता था, यही उस टाइम भी ऐसा ही कुछ होता था. उस टाइम एंट्रेंस एग्जाम बोलते थे. तो बेसिकली उस टाइम भी यही होता था. एंड एज यू नो कि लाइक इंजीनियरिंग में और यू नो एनी अदर प्रोफेशन, एंट्री इज डिफिकल्ट एंड एग्जिट इज लाइक प्रोसेस. करेक्ट. अगर आपने घुस गए इंजीनियर तो में हो ही घुस गए तो जाओ. हो ही जाता है. यहाँ CA में पे- ऐसा नहीं है. यहाँ उल्टा है, यहाँ उल्टा है. घुस तो जाते हैं पर निकल नहीं पाते. दूसरा क्या होता है, आई टेल यू कि देयर वाज अ बिग रिस्क बिकॉज इन माय टाइम देयर वाज नो प्लान बी. अगर CA नहीं बने तो क्या, तो यू डिड नॉट हैव एनी ऑप्शन. सो दैट वाज द यू नो थिंग एट दैट पॉइंट. आई थिंक यहाँ पे हम एडवांटेज में है कि वी हैव अ लॉट ऑफ बैकअप ऑप्शंस और प्लान बी फॉर अस कि I think- ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो कोई वोकेशनल कोर्स, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है आजकल, I एब्सोल्युटली think. बट उसकी वजह से आप जितना अपने आप को ऑप्शंस दोगे ना कहीं देन आप खुद कंफ्यूज हो जाते हो. बिकॉज जैसे आपने बताया आपके पास ऑप्शन ही नहीं था, अब यही करना है. एंड आई थिंक जब पापा से बात हुई तो बताते कि अगर CA कर लिया तो रिश्ते अच्छे आते थे. अच्छा, एब्सोल्युटली. अब मुझे पता चला ये यथार्थ में सी और आप देख रहे हो ये सिर्फ CA नहीं बना है, रैंक लिया है. अब सोचो इसके कितने अच्छे रिश्ते आएंगे. आई थिंक कि अभी ना इंटरनेट की वजह से और यूट्यूब आ गया है तो लेक्चर्स है, बहुत इजीली एक्सेसिबल है हर चीज़. तो अभी के ज़माने में आई फील CA बनना ईजी है अगर एक इंसान बहुत डिसिप्लिन के साथ डेडिकेटेडली करे. तो इतनी डिफिकल्टीज नहीं जो आपके ज़माने में थी. बट Absolutely. एक चीज़ जो प्रॉब्लम है एंड आई एम श्योर कि यथार्थ के साथ हुई होगी, एंड दैट इज़ कि जो चीज़ याद रखनी है वो याद नहीं रहती है और जिसे भूलना चाहते हो उसकी याद सताती रहती है. एब्सोल्युटली. तो व्हाट इज योर वन टिप फॉर समवन, यू नो, डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है बेसिकली. तो व्हाट इज योर वन टिप फॉर अ स्टूडेंट टू गेट ओवर दीज डिस्ट्रैक्शंस? जब हम स्टडी करते थे या मैं स्टडी करता था तब मैं कुछ याद करने की कोशिश नहीं करता था. ओके. उस टाइम क्या करते थे कि अभी जो मैं समझता हूँ वैसा है कि चलो यार ये उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के नोट्स पढ़ लो. सो द होल ऑब्जेक्टिव इज टू पास द CA. इन आवर केस होल ऑब्जेक्टिव वाज नॉट टू पास द CA, टू गेट द एजुकेशन. ऑफ कोर्स हम भी ये देखते करते थे उस टाइम कि भाई आपको ये छोड़ना है, ये पढ़ना है. पिछले सजेस्टिव आंसर 2 साल 3 साल 4 साल के सजेस्टिव, देन रेस्ट इज डन. तो यथार्थ, आई वांट टू नो इट फ्रॉम यू, हाउ डिड यू डील विद डिस्ट्रैक्शंस? So I think a very tricky question to answer, you know, and I think it's very subjective on the approach you take as to, you know, how much motivated you are to pursue chartered accountancy. Because अगर motivation है तो discipline आएगा तो ये सारी चीज़ें आपको प्रॉब्लम जैसी दिखेगी ही नहीं. मतलब यू वोंट सी यार मेरे लिए इंस्टाग्राम प्रॉब्लम है बिकॉज मेरे को CA करना है, तो वो प्रॉब्लम बनती नहीं है पहला. Agree. एंड आई थिंक स्टडी अप्रोच में अगर मैं बात करूँ तो आई थिंक ये जनरेशन थोड़ी सी स्मार्ट वर्क पे ज़्यादा बिलीव करती है rather than हार्ड वर्क. I agree. So I think Yatharth said very correctly. I think that is the difference now. You know, उस टाइम हम लोग पढ़ाई को एक एजुकेशन लेते थे कि चलो ये एग्जाम पास तो करना ही है, साथ में ये भी करना है. दूसरा हमको एक और समझ में आता था उस टाइम, एंड हमारे सीनियर्स भी बोलते थे कि आपने एग्जाम पास कर लिया, दैट इज नॉट इनफ. क्योंकि आपको जब जॉब करना है, कोई कॉर्पोरेट में जाना है, तो एग्जाम इज जस्ट ए बिगनिंग. एग्जाम विल गिव यू द एंट्री इनटू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड. बट जो आर्टिकलशिप होती है उसको आप सीरियसली लेके उसमें कैसे आप लर्न कर सकते हो. द अदर थिंग वाज लैकिंग इन दोज डेज, यू नो, which we used to struggle and we used to very compete with the MBS of those days, right? कि यार हम CA बन गए, हम बना रहे हैं, सबको डेटा बना रहे हैं, और MBA आके और उसको डेटा समझ में भी नहीं आया, लेकिन उसने एक फर्स्ट क्लास प्रेजेंटेशन बना दिया, PPT पैकिंग अच्छी कर दी. पैकिंग अच्छी कर दी, लुक एंड फील बेटर कर दिया. एंड वी यूज्ड टू सी फ्रॉम साइडलाइन, अरे क्या हो रहा है यार, मतलब ये बनाया हमने, उसको अगर आप 3 क्वेश्चन पूछोगे तो ही और शी विल नॉट एबल टू रिप्लाई, लेकिन क्रेडिट वो लेके चला क्रेडिट वो गया. लेके चला गया. सो दैट वाज वेरी मच लैकिंग. Okay. बट आज के CA आर डूइंग स्मार्ट वर्क एंड काफ़ी अवेयरनेस हो गई है, काफ़ी नॉलेज बेस है और काफ़ी गाइडेंस अवेलेबल है, जहाँ पे आपको स्टडी नहीं करना है, जो बाद में जो आफ्टर स्टडी जो आपको काम करना है वो भी आप अपने साथ में करते जाओ. And I think it is still relevant for us because, you know, still we, you know, in the market we do face challenge, you know, when competing with MBAs because I think college का जो exposure होता है, जो एक MBA को मिलता है,
जो एक बी स्कूल में जाने पे मिलता है, आई थिंक वो कहीं ना कहीं सीए में आज भी लैक करता है. तो मे बी कम्युनिकेशन या आर्टिकुलेशन स्किल्स इज समथिंग वेयर वी might struggle a bit in terms of when we compete with others in market. So I think ये problem आज भी थोड़ी relevant है. So अगर आप भी एक CA aspirant हो जो एक successful chartered accountant बनना चाहते हो, then let me tell you this that Unacademy is launching its new batches from 16th of April and 23rd of April. इसकी सारी details आपको नीचे description में मिल जाएगी. So make sure you check that out. So sir, जैसे आपने MBA के बारे में बताया कि सारा credits वो ले लेते थे and they used to present it well because presentation is equally important. Do you feel कि CAs can compete with MBAs? Absolutely. With this kind of the facilities available, this kind of options available, आपके पास जो study material है, आपके पास जो information available है, I think CAs are equally competent. In some cases, I have seen CA कि they are ahead of I should not say MBAs, but they are ahead of other profession. क्योंकि उनके पास एक अकाउंटिंग इन डेप्थ नॉलेज होता है, उसके साथ में ये प्रेजेंटेशन आर्टिकुलेशन की स्किल भी इज देयर इन नाउअडेज. करेक्ट. आजकल तो ये ट्रेनिंग भी होती है ITT, OT, GMCS, जिसकी वजह से CA सीख रहे हैं ये सारी चीज़ों के बारे में. करेक्ट. तो यथार्थ वांट टू नो इट फ्रॉम यू कि हाउ डू यू फील कि एक जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो CA एस्पिरेंट होता है वो अपनी पैकेजिंग को बेसिकली प्रेजेंटेशन स्किल्स को, यू बीन इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड रिसेंटली एंटर, तो वो कैसे इंप्रूव कर सकता है? So I think the key to is practicing. Practice never ends, because in corporate also once you get an opportunity to present your work to your managers, the way you present your day-to-day work to them, try to make everything neat and clean. Try to present it in a way that it is a presentation going to the board maybe. Every small thing try to present it in a very professional manner, and that is how you'll practice to present something with that fine refine and that with fine polish. Like sir mentioned before, storytelling is an ability which you'll have to learn, and that I have realized over the 6-7 months which I have been working, because if you're not able to convey what you know, then it's of no use. What is that thing which makes you a CFO, from a CA to CFO? So I think that is something which I'll be very interested to know. कि आप कुछ भी काम करते हो, खाली काम करने के लिए काम मत करो. जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये कॉर्पोरेट में बोला है कि भाई आपको ये MIS बनाने का, so don't call it MIS. When you are collecting the data, why he is asking, your supervisor or why boss is asking, उससे वो क्या करने वाला है, उसमें क्या इनपुट निकलने वाले हैं और उससे क्या बिजनेस डिसीजन लेने वाले हैं. ओके, सो अगर आप वो समझ जाओगे, if he is not telling you, please ask this. That is the difference between the CA who would become CFO eventually and the ordinary CA. That is the difference. कि आप जब भी कोई भी काम करते हो, कोई भी प्रोफाइल आपके पास है या काम करते हो, तो उसमें साइड में बहुत अपॉर्चुनिटी दिखती है, which may not be your core. Understood. So I think very helpful in terms of the methodology by which we should work during our corporate jobs. But on the career trajectory part, because nowadays I think it's very relevant, because we tend to switch our jobs in every 2-3 years. We feel ki once we switch, we might get a hike, we might get a promotion, we might get something higher than what we actually at are. So in terms of career trajectory, how do you think we should plan our careers? We should have small stints in different companies and sectors, or we should stay at one organization for a long time? So you don't work on end goal, you don't work on your career trajectory. You work on the making a difference, how you can impact the particular work you are doing, and how you can contribute to the organization. So even it is a small company, may not be a listed company, you can contribute a lot. So if you understand the business well, and if you are working with a promoter or even in a small company, and if you contribute, the growth is bound to come. So the problem nowadays which I see कि आपको ये करना है तो पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो उसके आप पीछे पीछे भागते हो. उसमें क्या होता है कि आपको लॉन्ग टर्म जो चीज़ें होती है वो आप भूल जाते हो. देयर इज इक्वल अपॉर्चुनिटीज एवरीवेयर, और जैसे भी अगर आप उसमें सक्सेस दिखाओगे या काम दिखाओगे तो आपको अपॉर्चुनिटी अपने आप आती जाएगी. सो एक ऑर्गेनाइजेशन में लंबे टाइम तक रहना इज एब्सोल्युटली बेटर. एब्सोल्युटली, बट यू हैव टू बी एट राइट प्लेस. राइट, दैट इज इंपॉर्टेंट. सो आपका जो स्टार्टिंग का जो ड्यू डिलिजेंस है वो फुल प्रूफ होना चाहिए, इंपॉर्टेंट होना चाहिए. So सर, जैसे आपने बताया कि जो स्टार्टिंग का जो ड्यू डिलिजेंस है वो सही से होना चाहिए. हाउ कैन समवन डिसाइड कि वो राइट प्लेस पे है कि नहीं? समवन हु इज अ फ्रेशर, और वो डिसाइड कैसे कर पाए? So it's very simple, with this kind of information and knowledge available on internet, right? First of all, कि आप किस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर रहे हो. Is it industry doing well?
व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दैट इंडस्ट्री, राइट? अगर इंडस्ट्री सही कर रही है देन यू शुड गेट इनटू दैट, नंबर 1. सेकंड इज उस इंडस्ट्री के प्रमोटर कैसे हैं, आर दे रेपुटेड और दे आर नॉट रेपुटेड, उनके एथिक्स है कि नहीं है. दैट इज वेरी वेल अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन. मतलब आई डोंट वांट टू नेम द कंपनीज, बट यू नो कि ये ग्रुप है तो ये एथिकल ग्रुप है, ये ग्रुप है तो ये एथिकल ग्रुप नहीं है. ओके, सो डोंट वरी अबाउट मनी, मनी विल कम. So that is point number 2. Third thing is, of course, you can see as a priority number 3 is money also, you can see. And fourth is the profile which you are getting into. There are a lot of information available in the public domain. तो उस कंपनी के फॉर एग्जांपल रेटिंग कितनी है, उसका रेशियोज कितने हैं. इफ यू स्टडी द बैलेंस शीट ऑफ एनी कंपनी तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि इस ओवर लीवरेज तो नहीं है, ज़्यादा डेट तो नहीं ले लिया है, कैश फ्लो कैसा है, यू नो. सो दीज 3-4 फैक्टर्स should be considered while deciding to go for particular profile or company. So sir, can you just suggest a few courses or a few certification courses that a CA student can do along with CA? So I will take help from Yatharth, but see, anything which enhance your capability and skill set in terms of articulation, in terms of putting the things in a better way, in terms of getting the insights from a particular data, that would be helpful. Yatharth, if you can. Right. So I think it will, majorly depend on what profile you are getting in. For example, if you are something in investment banking, private equity, or let's say treasury, then maybe a course like CFA would be relevant. If you are into, risk side, the organizations are very, very, very aware about risk management, right? And they're very particular about it. So maybe a few courses on risk management, or in fact, maybe, a course on SQL, or maybe a course on Tableau, or maybe, data analytics courses, I think would be a big add, which I think, is very relevant for us. Maybe courses on Power BI. So I think these are some vocational courses which can, maybe add benefit. Sir, I have a very, I'm very curious to know about something. जैसे बॉलीवुड में नेपोटिज्म होता है, राइट, एंड फेवरिज्म होता है, आजकल पॉलिटिक्स में होता है, हर जगह पे होता है. सो मतलब आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि क्या कॉर्पोरेट में भी नेपोटिज्म जैसा, या लेट्स से गॉड फादरिंग, और आई वुड से फेवरेटिज्म तो ठीक है, वो अलग हो गया, बट आई थिंक गॉड फादरिंग होना या नेपोटिज्म ऐसे कुछ जरूरी होता है कि आपका अगर कोई गॉड फादर है तो ही यू विल पुल यू अप इन योर करियर, या ऐसा कुछ होता है. मैं ये नहीं बोलूँगा कि नहीं होता है. सो देयरफॉर मैंने आपको बोला था कि आपको काम करना नहीं है, करना दिखाना भी है. सो लेकिन आपका जो ग्रोथ होती है या आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलती है वो आप समझ लो कि 80% आपके काम से मिलती है. बट यू हैव टू बी वेरी वेरी एनवायरनमेंट सेंसिटिव कि आपके आजू बाजू में क्या हो रहा है. ऐसा नहीं कि आप अपने सर नीचा करके डेस्क में आप काम कर सकते हो. तो समटाइम यू हैव टू बी ऑफेंसिव, समटाइम यू हैव टू बी डिफेंसिव. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप काम क्या कर रहे हो, काम कैसे कर रहे हो, और आप कंट्रीब्यूट क्या कर रहे हो. एट द एंड इंसान की स्किल्स काम आती है, भले वो हाँ. जैसे बोलते हैं ना, कोई शॉर्टकट नहीं होता है लाइफ में, तो इसमें भी शॉर्टकट नहीं है. इस शॉर्टकट में आपको पैसा कमाना है तो चलो आपने एक जॉब कर लिया, दूसरा जॉब कर लिया, तीसरा जॉब कर लिया, फिर आप क्या करोगे. आपका से रियल मार्केट वैल्यू है फॉर एग्जांपल कोई सीए का 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, 2 साल 3 साल वाला सीए, आप कैसे भी कैसे 45 लाख पे पहुंच गए. सर एक और चीज़ की, बिकॉज आई एम स्टार्टिंग माई करियर एज अ सीए, सो कैन आई इंस्टेड ऑफ CFO कैन आई ऑल्सो प्लान कि मैं CEO बन सकता हूँ या COO बन सकता हूँ, या सिर्फ CFO ही एक चीज़ है जो एज अ CA मेरे को देखनी चाहिए. आई थिंक ये सपना बहुत बड़ा नहीं है. सपना, ये सपना एक रिजनेबल है. आजकल आपने देखा होगा काफ़ी कंपनीज में काफ़ी CEOs या मैनेजिंग डायरेक्टर वो CFO होते हैं. सो आई थिंक सपना करना तो आप CEO का सपना करो, CFO का सपना तो रिजनेबल है, मतलब ये होता ही है. इनफैक्ट अगर आप मुझे पुराने प्रोफाइल मेरा अगर CV पढ़ेंगे तो आई वॉज CEO फॉर पर्टिकुलर इन पर्टिकुलर कंपनी फॉर पर्टिकुलर बिजनेस. सो ये आराम से हो सकता है, पर आपको अपने पूरे दिल और दिमाग से काम करना पड़ेगा, अपना हार्ट और सोल लगाना पड़ेगा उसमें, और आपको शॉर्टकट नहीं देखना पड़ेगा. शॉर्टकट देखोगे तो फिर आपको कुछ समय में आपको मिल जाएगी सफलता, लेकिन आप लंबे समय में सफलता नहीं पा सकते. सही बात है. सो अभी आप कन्विंस हो गए होंगे कि एक जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसका स्कोप सिर्फ CFO तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि वो एक बड़ी कंपनी का CEO भी बन सकता है. सो नाउ लेट्स गो टू द फ्लैशबैक योर एग्जाम टाइम. एंड आई एम श्योर सबके लिए जो एग्जाम का फेज होता है बहुत स्कैरी होता है, बहुत थोड़ा एडवेंचरस होता है. आई वुड लाइक टू नो कि आपका हाउ वाज इट फॉर यू एंड एनी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी दैट यू फॉलोड टू क्लियर दिस एग्जाम. सो सुरभि, एग्ज़ाम का ऐसा है कि एग्ज़ाम टाइम पे आपको कुछ करना नहीं होता है. इफ़ यू आस्क मी,
मैं तो एग्जाम टाइम पे लिए कुछ नहीं करता था. सो जब भी आप स्टडी स्टार्ट करते हो, मे बी इन द बिगनिंग ऑफ योर CA कोर्स, यू नो, तभी मैं या 2 महीने पहले 3 महीने पहले स्ट्रेटजी बना लेता था कि मुझे क्या पढ़ना है, किस टाइम पे क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है. ओके, एंड देन इफ एकदम ड्रास्टिक कुछ अगर चेंज हुआ है, देन यू चेंज योर स्ट्रेटजी, अदरवाइज यू फॉलो दैट स्ट्रेटजी. और आपको अपनी स्ट्रेटजी पे ट्रस्ट करना है, विश्वास करना है और वो स्ट्रेटजी फॉलो करना है. ठीक है, नंबर 1. नंबर 2, अब 10 दिन पहले हो गए और आपका कोई दोस्त आया, उसने बोला अरे ये तूने क्वेश्चन देखा नहीं देखा. ओके, देन अभी आपने जो अपना बजट किया टाइम का कि मैं इस टाइम पे ये पढ़ूंगा, अब आपका वो डिलेर हो गया, आप उस टेंशन में चले गए और आपने वो सब छोड़ के वो कर दिया, तो आपका क्वालिटी जो टाइम है वो कहीं यूज हो गया. बट सर इसी को CA एग्जाम को आगे ले जाते हुए, CA एग्जाम के बाद CA रिजल्ट आता है, तो आप CA रिजल्ट के दिन ज़्यादा डरते थे या जब आज कंपनी के रिजल्ट्स आते हैं तब आप ज़्यादा डरते हो? देखो रिजल्ट नाम से ही मुझे लगता है वो खौफ है थोड़ा. सो ये तुमने बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछा यार, तुम बड़ा स्मार्ट हो यार. सर रैंकर है. नाउ आई कैन सी दैट. सो देखो कंपनी के रिजल्ट्स में तो डर नहीं लगता है, क्योंकि आप एक CFO हो, अकाउंटेंट हो, तो आपको मालूम है कि कंपनी के KPIs कैसे मूव हो रहे हैं, तो आप एक्सपेक्टेड होता है. हाँ ठीक है, वो आपको इन्वेस्टर को क्या जवाब देना है या नहीं देना है वो चीज़ रहती है. पर CA में ऐसा है, जो मैं उस टाइम का मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई भी नोबडी इज़ कॉन्फिडेंट कि आपने एग्ज़ाम दे दिया तो नोबडी कैन से कि मैंने बहुत एग्ज़ाम गया है, ये क्वेश्चन मैंने राइट किया है, अच्छा किया है, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाए. सो जैसे आज भी होता है मेरे हिसाब से, यू कैन टेल मी, और पहले भी होता था. द रिजल्ट जिस दिन CA का रिजल्ट आता था उस दिन सबसे बिगेस्ट डे होता था. ओके, कि बहुत कम लोग होते थे, मे बी 2% 5% जो बोलते थे कि मेरा हो जाएगा टाइप्स. बाकी ऑल जो बाकी लोग होते थे, दे वर ऑल अंडर टेंशन एंड वी वर इक्वली अंडर टेंशन और प्रेशर कि क्या हुआ. और सर उनका प्रेशर सोचो, जो रिजल्ट के दिन जिनके घर गेस्ट आए हुए, रिलेटिव्स आए हुए, अब उनका प्रेशर उस दिन तो गया उस दिन तो आप घर से भाग जाओ. सही बात है. सो ये होता है, बट उसमें मेरा एक विश्वास है कि अगर आपने पूरी तरह से मेहनत की है, स्टडी की है और दिल और दिमाग से किया है, तो आपको रिजल्ट से डरने की जरूरत नहीं. तो मुझे इसे एक चीज समझ आई है कि अपनी मेहनत पे फोकस करो रादर देन बीइंग रिजल्ट ओरिएंटेड. और ये यथार्थ ही हैज बीन अ रैंकर. आई वुड लव टू नो इट फ्रॉम यू कि व्हाट वाज योर स्पेसिफिक स्ट्रेटजी टू गेट अ रैंक. सो आई थिंक रैंक लाने का पहला स्टेप इज कि कैन यू डेयर टू थिंक टू ब्रिंग अ रैंक. कि इंसान कई बार आई थिंक सोचता नहीं है रैंक, अरे वो तो मेरे बस की नहीं है, तो वो उस डायरेक्शन में नहीं सोचता. तो आई थिंक पहला स्टेप है कि आप उस डायरेक्शन में सोचो. अगर आप वो सोच सकते हो तो आप वो कर भी सकते हो, और अगर आपने वो सोच लिया तो आपको रास्ते अपने आप खुल जाएंगे कि यार कैसे कैसे करना है. क्योंकि आजकल इतने गाइडेंस वीडियोस है यूट्यूब पे, इधर उधर इतने जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, टीचर्स जो होते हैं, इतना गाइडेंस आपको अवेलेबल होता है कि अगर आपको रैंक लानी है तो आपको रास्ता बताने वाले बहुत लोग हैं. आजकल मेंटरशिप की आई थिंक कमी नहीं है, कमी है अंदर से सोच की और आई थिंक मोटिवेशन की, कि क्या वो सोच सकते हो, क्या वो कैन यू डेयर टू थिंक दैट बिग. इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है हर जगह. करेक्ट. सो आई थिंक सोर्सेज बहुत है आपको, अगर रैंक लानी है उसकी गाइडेंस की, मेथड्स की, सबकी है, बट वही आप सोच सकते हो क्या उस चीज़ के लिए. सो सर यथार्थ, आई एम श्योर कि आप अपना एक 20-year-old वर्जन देख रहे होंगे उसमें. सो व्हाट वुड बी योर पीस ऑफ एडवाइस टू हिम जो उसको करियर में हेल्प करे? मेरा एडवाइस ये रहेगा यथार्थ कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, दैट यू कैन वेट और योर फैमिली कैन वेट कि चलो इमिडिएटली पैसा से. आपको क्या होता है CA बनने के बाद क्या होता है, आदमी जॉब क्यों करता है कि चलो यार पैसा दिखता है, 20 लाख की सर्विस 30 लाख की है, पैसा दिखता है. लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो CA शुड कंट्रीब्यूट टू द नेशंस ग्रोथ. कि चलो मैं इंस्टेड ऑफ बिकम एम्प्लॉई, व्हाई डोंट यू बिकम एम्प्लॉयर, जैसे आपने किया है. ओके, तो वहाँ अगर आप उसमें ठीक है गेस्टेशन पीरियड रहेगा, 2 साल का रहेगा, 3 साल का रहेगा. सो दिस कुड बी ए वन बिग अपॉर्चुनिटी. जिस हिसाब से हमारा इंडिया ग्रोथ कर रहा है, जिस हिसाब से अपॉर्चुनिटी हमको दिख रही है, जिस हिसाब से टेक प्लेटफॉर्म जो इतने आ गए हैं, जिस हिसाब से हमारे पास इतनी सर्विस इंडस्ट्री ग्रो करी है लास्ट फ्यू ईयर्स में, तो मुझे काफ़ी अपॉर्चुनिटी दिखती है. एंड CAs आर नो मोर मुनीम, वो खाली अकाउंटेंट नहीं है, वो एंटरप्रेन्योर है लाइक यू. ओके, और आप भी जो अपना जॉब के अलावा जो साइड में जो करते हो, अगर आप वो कर सको तो नथिंग लाइक इट. उसमें पैसा इमीडिएट नहीं आएगा, पर पैसा अच्छा आएगा. सबसे ज़्यादा ये अच्छा है कि आप एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर बन जाओगे, विच विल बी बिग कंट्रीब्यूशन टू द देश की उन्नति के लिए बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा. दैट इज माई एडवाइस. जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे जो 1500-1600 रुपया जो भी महीने के थे, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी.
Not that my family was not supporting me. My family was good family. But मेरे को ये प्रूव करना था अपने आप को कि मैं भी पैसा कमा सकता हूँ. So because there was nobody to guide. कोई मतलब सलाह देने वाला नहीं था, right? तो अभी आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, इतने आपके गाइड हो जाएंगे, तो आपको अगर आप खुद का बिजनेस कर सकते हो या खुद स्टार्टअप कर सकते हो, यू शुड डू दैट एंड बिकम एम्प्लॉयर. करेक्ट. इसमें एक सेंस ऑफ पर्पस भी मिलता है और एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट भी मिलता है. एब्सोल्युटली, यू सेड इट राइट. एंड दिस इज द एज जहाँ पे हम रिस्क ले सकते हैं. एब्सोल्युटली राइट, यू आर राइट. अंडरस्टूड सर. So thank you so much sir for sharing your insights with us and I am sure यथार्थ आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा इस वीडियो से. You might be making mental notes. Me as a so sir me as a chartered accountant मुझे भी बहुत सारी नई चीज़ें सीखने मिली कि जो मेरे करियर में हेल्प करे, ग्रोथ में हेल्प करे. सर दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग. आई एम श्योर आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा और बहुत सारे इंसाइट्स लिए होंगे. अब जल्दी से मुझे कमेंट्स में बता दो कि व्हाट वाज दैट वन लेसन दैट यू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अनअकैडमी सीए स्क्वाड फॉर मोर सच इंसाइटफुल कंटेंट. और अभी ये वीडियो जाके अपने सारे सीए दोस्तों के साथ शेयर कर दो.